हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, इट इज़ अ क्लियर, colorless, transparent fluid that circulates through ventricles of brain, subarachnoid space and central canal of spinal cord. It is a part of extracellular fluid. Properties: volume 150 ml and 720 ml हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है, 120 ml सर्कुलेट होता है एंड 600 ml अब्जॉर्ब होता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन 0.3 ml पर मिनट। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005। reaction alkaline. And cerebrospinal fluid also contains some lymphocytes. Cerebrospinal fluid secreted by ventricles does not contain any cell. Lymphocytes are added when cerebrospinal fluid flows in spinal cord. Cerebrospinal fluid: water 99.13%, solids 0.87%, organic and inorganic. Organic: protein, amino acid, sugars, cholesterol, urea, uric acid, creatinine and lactic acid. And inorganic contains sodium, calcium chloride, potassium, magnesium chloride, phosphate, bicarbonate and sulfates. Now coming to the formation of cerebrospinal fluid. Site of formation: it is formed by coral plexus situated within the ventricles. Ventricles में जो coral plexus होता है वहाँ पे cerebrospinal fluid का formation होता है. A large amount of cerebrospinal fluid is formed in lateral ventricle. Mechanism of formation: cerebrospinal fluid is formed by the process of secretion that involves active transport mechanism. Formation of CSF does not involve ultrafiltration or dialysis. Now coming to the circulation of CSF fluid. Major quality of CSF is formed in lateral ventricles and enters third ventricles by passing through foramen of Monro. मेजर क्वालिटी CSF फ्लूइड का जो फॉर्म होता है वो लेटरल वेंट्रिकल्स में राइट लेटरल वेंट्रिकल एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल फिर जाता है, पास होता है फोरामेन ऑफ मुंड्रो. द पास सो इन इज गिवन हियर. आप ये पिक्चर्स फ्लो चार्ट देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि जो लेफ्ट लेटरल एंड राइट लेटरल वेंट्रिकल्स में जाता है, फिर फोरामेन ऑफ मुंड्रो में पास होता है, फिर थर्ड वेंट्रिकल एंड एक्वाडक्ट ऑफ द साल्वियस, फिर फोर्थ वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर 2 लस्का एंड 1 मैगिनडाई फॉर्म्ड होता है. फिर आपका फ्लूइड जाता है सबारेक्नोइड स्पेस एंड जो विलाई क्या करती है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाती है. कितना ml बनाएगी? 720 ml बनाती है. 600 ml अब्जॉर्ब करती है, 120 ml सर्कुलेट करती है. एंड देख सकते हो आप इस तरीके से फ्लो चार्ट. एंड प्रेशर कितना होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय CSF इज मेन वेरीज इन डिफरेंट पोजिशन. लेटरल पोजिशन 10 to 18 centimeter per H2O and lying position 13 centimeter per H2O. Sitting position 30 centimeter per H2O. Coughing and crying increase the pressure. जब आप कफ करते हैं, एक क्राई करते हैं तो आपका जो CSF फ्लूइड होता है वो इंक्रीज हो जाता है. कंप्रेशन ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन ऑल्सो रेज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर. जब आप इंटरनल जुगुलर वेन को कंप्रेस करते हैं तो आपका जो CSF फ्लूइड है, प्रेशर है, वो इंक्रीज होता है. एंड फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. CSF फ्लूइड का क्या काम है? फर्स्ट इज प्रोटेक्शन. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्ट एज फ्लूइड बफर एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक. ये शॉक से हमें प्रोटेक्ट करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और इंजुरी से भी बचाता है. रेगुलेशन ऑफ क्रेनियल कंटेंट वॉल्यूम. इट इज नेसेसरी बिकम ब्रेन may be affected if the volume of cranial content increase. Medium of exchange. Cerebrospinal fluid is the medium through which many substances, particularly nutritive substance and bond material or exchange between blood and brain tissue. Now coming to the collection of cerebrospinal fluid. CSF is collected either by cisternal puncture or lumbar puncture. आप CSF फ्लूइड कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? बाय लंबर पंचर. जब आप लंबर को पंचर करते हैं तो इससे आप सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कलेक्ट कर सकते हैं. इन सिस्टर्नल पंचर द CSF इज कलेक्टेड बाय पासिंग अ नीडल between the occipital bone and atlas.
so that it enters cisterna magna. In lumbar puncture, the lumbar puncture needle is introduced into subarachnoid space in lumbar region between the third and fourth lumbar spines. जब आप लंबर पंचर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का LACS करते हैं तो आपको इस केस में क्या देना होता है, स्पाइनल देना होता है. स्पाइनल में क्या होता है, जब आप इन एडल्ट में थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आप क्या करते हैं, नीडल इंसर्ट करते हैं. नीडल इंसर्ट करके आप क्या करते हैं, CSF फ्लूइड चेक करते हैं कि रिमूव हो रहा है कि नहीं. फिर आप क्या करते हैं, उसमें आप पेशेंट को ब्लॉक देते हैं. या फिर फॉर इन केस आपको CSF फ्लूइड का सैंपल लेना है तो आप उस केस में आप पेशेंट को लेटरल पोजीशन दे सकते हैं, या फिर आप सिटिंग पोजीशन में भी आप फ्लूइड को रिमूव कर सकते हैं. एंड ब्लड ब्रेन बैरियर BBB. ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है हम देखते हैं. इट इज़ अ न्यूरो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर. ये एक न्यूरो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है that prevent the entry of many substance and pathogens into the brain tissue from blood. अगर ब्लड से कुछ भी अगर पैथोजेंस जाते हैं, ठीक, अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म जाते हैं, इन्फेक्शन जाता है, बैक्टीरिया जाता है, तो वो क्या करता है, उससे प्रिवेंट करता है. ये ब्लड ब्रेन बैरियर आपका ये करता है कि आपके ब्लड ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है. The structure tight junction in the endothelial cell of brain capillaries are responsible for blood brain barrier mechanism. तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेन कैपिलरीज. इन कैपिलरीज ऑफ ब्रेन फेनेस्ट्रा और अपसेंट. जो ब्रेन की कैपिलरीज होती है वहाँ पे एक फेनेस्ट्रा होती है, लेयर होती है, वो अपसेंट होती है बिकॉज द एंडोथेलियम सेल फ्यूर विथ ईच अदर बाय टाइट जंक्शन. एस्ट्रोसाइट्स न्यूरोलजिया सेल्स. एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं, जो न्यूरो सेल्स होते हैं उसे बोलते हैं एस्ट्रोसाइट्स. इन्वॉल्व द वेंट्रिकुलर almost completely. Penicytes also form the important cellular constituent of blood-brain barrier. In brain, pericytes function as macrophage and play important role in defense. You can see in pictures the blood-brain barrier. And now coming to the function of blood-brain barrier. blood-brain barrier का मेन काम क्या होता है, एक्ट एज मैकेनिकल बैरियर एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. ये कहाँ एक्ट करता है, मैकेनिकल बैरियर और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में काम करता है, एक्ट करता है. प्रोवाइड्स हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर नर्व सेल्स और ब्रेन. जो ब्रेन की नर्व सेल होती है वहाँ पे क्या होता है, हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है. सब्सटेंस विच कैन पास थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर. कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पास करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर से पास होते हैं. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, ड्रग, लिपिड सोल्यूबल एंड लिपिड सोल्यूबल गैसेस. सब्सटेंस विच कैन नॉट बी पास, इंजूरियस केमिकल एजेंट्स, pathogens, drugs, penicillin and catecholamines, dopamine, bile pigments. If passed, then disorder like jaundice or kernicterus can develop. कैपिलरीज देखो, अगर बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो अगर ये पास होता है तो आपको जॉइंडिस हो सकता है या कर्निक्टरस होता है. ऐसे तो ये पास नहीं होना चाहिए. ओके, कैपिलरी ल्यूमस एंड टाइट जंक्शंस आप देख सकते हो पिक्चर्स में. यार अप्लाइड फिजियोलॉजी, क्या क्या फिजियोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं. हाइड्रोसिफेलस, अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ. देखो, एक कंडीशन होती है हाइड्रोसिफेलस जिसमें ब्रेन का इनलार्जमेंट होता है. वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्कल में एबनॉर्मल अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है. इससे क्या होता है, ब्रेन इनलार्ज हो जाता है, बेबी का हेड इनलार्ज हो जाता है. इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल हाइड्रोसिफेलस. ये कैसा हो सकता है, इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी ब्रेन का साइज इंक्रीज हो सकता है. बिकॉज ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का लेवल इंक्रीज हो जाना कैन कॉज हेडेक होता है, वॉमिटिंग होता है ड्यू टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर. आपका जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है वो नॉर्मली होता है 8 से, नॉर्मली आपका जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है वो नॉर्मली 5 to 15 mmHg, 5 से 15 mmHg होना चाहिए.
in some cases it leads to atrophy of brain, मेंटल वीकनेस एंड कन्वर्सन्स। इनमें ब्रेन का एट्रोफी होगा, मेंटल वीकनेस होगा और कन्वर्सन्स आ सकते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोसेफेलस कंडीशन। नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन, communicating hydrocephalus non-obstructive occurs when the cerebrospinal fluid flow out of the ventricles and into the spinal cord, but it is not reabsorbed normally by the tissue surrounding the brain and spinal cord. Sometimes this type of hydrocephalus corrects itself। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका CSF फ्लूइड कितना फॉर्म्ड होता है, 720 ml। आप 720 ml में से 600 ml अब्जॉर्ब होता है एंड 120 ml सर्कुलेट होता है। बट इस केस में क्या होता है, इन केसेस में आप क्या इन केसेस में नॉर्मली आप देखते हैं कि इन केसेस में 720 ml में पूरा 720 ml क्या होगा, वो सर्कुलेट होगा। जिस कंडीशन में क्या हो सकता है, अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, 720 ml सर्कुलेट हो रहा है, तो ये होती है हाइड्रोसेफेलस वाली कंडीशन। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा, अगर व्हेन द cerebrospinal fluid does not flow properties between or out of the brain ventricles because of an obstruction such as from a malformation or narrowing। ये अगर होता है cerebrospinal fluid क्या होता है, ठीक से फ्लो नहीं हो पाता है इनके बीच में, ब्रेन वेंट्रिकल्स, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज करता है और वहाँ पे मालफॉर्मेशन हो जाता है, वो नेरो होगा। ओके, थैंक यू क्लास।